continue with the technical subjects as prescribed for today's session. So good evening, everyone, and welcome to the third day of this exclusive session for valuation topics under CEV IAF RVO. Without wasting any time, I would like to request Dr. Rajvinder sir to please take the charge to continue with the subject so that we can be able to finish all the topics as prescribed for today's syllabus within the permissible time limit. Welcome to the class, sir, and namaskar. How to value landlocked land. So you know what is landlocked land. See, this is just in picture. You must understand that the land which is not having independent road. How to value that? So what is landlocked property? Which is having a lack of public road access. The property which is having no public road access. A plot is landlocked if it lacks access to government-owned public road. Means there is no legal right of way. So what will be its impact? Of course, it will definitely decrease the value of the property. Then is the so there are different types of scenario. First one is see here, this is plot A, this is plot B. So plot A is landlocked. There are different such scenarios. So here, plot A is near to a road. It is having a road 7 to 10 meters, close proximity. Access might be negotiated with the neighboring plot B. Only thing is they can have a negotiation with the plot owner of B through which he can have a passage. Now this is a scenario B. This plot A. So right to access via plot B, C, D, and E might be possible. Either through B, either through C, either through D, either through E. And the third scenario is landlocked plot is far away from the road. Access might be required through multiple owners through B, C, and D. देखिए, मुझे अभी थोड़े दिन पहले एक हमारे वैल्यूअर का फोन आया था। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज हिज नेम। तो उन्होंने एक वैल्यूएशन करनी थी जो लैंडलॉक थी, और उसके लिए उनको एक वैल्यूएशन के लिए कुछ गाइडेंस की जरूरत थी। तो इनकेस अगर आपका पॉइंट ए है, जैसे सिचुएशन 1 है, तो उसकी वैल्यू, देखिए ये तीनों सिचुएशन में और भी कई सिचुएशन या सिनेरियोज हो सकते हैं, लेकिन तीनों सिचुएशन में क्या है, सभी लैंडलॉक्ड है, लेकिन सभी की वैल्यू सेम नहीं होगी, सभी में आप सेम डिस्काउंट अप्लाई नहीं करेंगे। सिचुएशन 1 में सिर्फ एक ही आदमी के थ्रू एसेस मिल सकती है, उसके लिए वैल्यू कुछ और होगी। सिचुएशन बी में आपको एसेस या परचेज, प्रपोज्ड परचेजर आपके पास 4 हैं, चारों में से कोई भी परचेज कर सकता है प्लॉट ए को, या चारों में से कोई भी एसेस रास्ता दे सकता है प्लॉट ए को, तो इसमें वैल्यू कुछ और होगी। और सिचुएशन 3 में आप देखिए प्लॉट ए कहां पर जाकर है, तो इसमें इसकी वैल्यू
सिचुएशन 1 और 2 से बिल्कुल अलग होगी। तो ये अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं, इसके अलावा देयर में बी 100 ऑफ अदर सिचुएशंस। तो मेरा सजेशन यही है कि हर प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि यार हर एक में 25% कंसेशन लगा, डिस्काउंट लगा दो, या उसमें लेस कर दो, या उसमें ये कर दो। एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए क्यों हम कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। तो बिफोर accepting this type of project, you must understand what is meant by landlocked property and what are the different situations you may encounter during the visit. Over to you, sir. Thank you, Sandeep ji, for your valuable input. So, what are the challenges of remote access? There may be, as in this case, you have to deal with the multiple owners where the access may not be possible. You cannot have consent, unanimous consent from all the owners. So, this will further reduce the diminishes the land value. So, Bombay High Court, they have given one case laws is there. A watched ruling. The Honorable Bombay High Court ruled in the case of MV Chat and others that value landlocked land could be assessed at 75% less from value prevailing in the locality. However, each instance will have unique facts and circumstances, and the actual reduction will rely on these. तो जनरली ये एक ट्रेंड है कि हम 75% लेस कर देते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आप कर सकते हो, लेकिन हर एक केस में नहीं है। एवरी केस इज ए यूनिक केस एंड यू हैव टू अप्लाई इट अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियो। So, vast ruling offers legal precedent. It provides guidance on valuation discounts. So, there are certain other cases also. This Ramachandra Matario versus Collector Nagpur, interior land, no road, 3/4 of the value deduction is justified. Another case is there, Mumtaz Ali Khan versus the Collector Rampur, UP. Inaccessible land is essentially worthless in modern context. They have given this. Then another case is there, Printers House Private Limited versus Sayadin. In enclosed land, no road, reduced value may be 3/5 of the standard plots. So there are different rulings are also available for landlocked land. And if you are doing valuation, you can quote these rulings also if you require. So see, you have to study these court cases. This helps in understanding valuation in such cases. So more such cases also there. So from there you can do valuation. Understanding these cases will make you more confident for doing the valuation of in such cases. So what you have to do, determine the cost of purchasing excess plot, as in the case of plot B, adjust land value, subtract excess cost from the potential value, and apply discount rate for excess uncertainty. For example, owner of the plot A desires to sell the plot. Plot area is 1000 square meter. Prevalent rent rates of the plot abutting the road is 10,000 per square meter. So for plot B, rate is 10,000 per square meter. Owner of the plot B wants to sell his plot to owner of plot A at 15,000 per square meter. Area of the plot B is 400 square meter. Calculate the value of the plot A. वैसे जो जनरली रेट है वो 10,000 पर स्क्वायर मीटर है। अब लेकिन ए वाले का जो 400 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, तो प्लॉट बी जो है 400 स्क्वायर मीटर का है और ए का प्लॉट 1000 स्क्वायर मीटर का है, बट इट डज नॉट हैव ए डायरेक्ट एक्सेस।
अब बी कह रहा है कि मैं आपको प्लॉट बी जो है मैं सेल कर दूंगा, जो लैंड रेट इज 10,000 इन द एरिया, बट आई विल सेल इट टू एट 15,000 पर स्क्वायर मीटर. So calculate the value of the plot A, rate for square meter for plot A, and discount on land for plot A which is market land rates. So देखिए, सिचुएशन वन, प्लॉट एरिया 1,000 स्क्वायर मीटर, प्लॉट ए, लैंड रेट 10,000 स्क्वायर मीटर, प्लॉट बी 4,000 स्क्वायर मीटर, लैंड रेट जो है 15,000 स्क्वायर मीटर. अब जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ये सिचुएशन होगी. सो सेल ऑफ प्लॉट बी विच एरिया, अब बी जो सेल करेगा 400 इंटू 15,000, 60 लाख रुपीज उसको देने पड़ेंगे ए को, बी बी के, उसका पार्ट प्लॉट परचेज करने के लिए. अब सेल जब बी सेल करेगा, वो तो ए प्लस बी सेल कर देगा इकट्ठा प्लॉट, टोटल प्लॉट कितना हो जाएगा उसका, 1,000 प्लस 400, 1,400 स्क्वायर मीटर का, 10,000 प्रिवेलिंग मार्केट रेट है. वो कितने का सेल करेगा, 1,40,00,000 का. लेकिन उसको उसमें से 60 लाख रुपया उसको ए को देना पड़ेगा, तो उसको बेसिकली कितना मिलेगा, 80 लाख. तो पर स्क्वायर मीटर रेट जो है वो तो 80 लाख मिला, और उसका तो प्लॉट एरिया 1,000 स्क्वायर मीटर ही है. अब उसको कितने का सेल मिला, 8,000 पर स्क्वायर मीटर. और ये चीज देखनी है, लैंड रेट फॉर प्लॉट है, उसमें आप ये 1,48 ले नहीं लेगी. जब लैंड रेट लेना होगा ऐसी सिचुएशन में, तो 1,000 से डिवाइड करके रेट आपका आ गया 8,000 पर स्क्वायर. तो लैंड रेट फॉर प्लॉट ए अबटिंग द रोड 1,000 इंटू 10,000, अगर वो सेल करेगा तो 1 करोड़ का सेल होगा, अगर 1,000 रुपीज होता, अगर रेट उस पे लगता. तो डिस्काउंट उसको कितना पड़ा, 1 करोड़ की बजाय 80 लाख का सेल हुआ, तो उसको 20% यहाँ पे हमने डिस्काउंट लगाया. अदरवाइज हम क्या करते हैं कि 75% लगा देते हैं हर जगह. यहाँ पे डिस्काउंट जो हुआ, देर इज डिस्काउंट ऑफ 20% इंस्टेड ऑफ 75% पर लैंड लॉक लैंड प्लॉट है, अगर ऐसा सिचुएशन है. अब ये दूसरा सिचुएशन ले लेते हैं. Owner of the plot A desires to sell his plot at demurring 1,000 square meter. Prevailing land rate subverting road is 10,000 per square meter. Owner of the plot C has agreed in writing to permanent way 6 meter by 60 meter to the plot A by creating monthly lease rent of 20,000. Compensation capitalization rate is 8%. Calculate the value of our plot A. Rate per square meter for plot A and discount rate of our land A vis-a-vis market land. अब ये दूसरी सिचुएशन हो गई कि सी एग्री हो गया कि ही विल गिव ये राइट ऑफ वे ऑफ 60 मीटर बाय 6 मीटर, एंड ही विल बी चार्जिंग 20,000 मंथली लीज रेंट. So even if the plot A gets 5 over, it would fetch less 25 rate because of its real location. अगर इसको लैंड ए को मिल भी जाता है रास्ता, तब भी इसकी वैल्यू जो है वो 10,000 नहीं होगी, क्योंकि ये तो पीछे रहेगा. इसको सी में से रास्ता मिल भी जाता तो वी अज्यूम दैट इट्स वैल्यू विल बी 25% लेस बिकॉज ऑफ इट्स लियर लोकेशन. So let us suppose instead of 10,000 per square meter, it will be sold at 25% less
1,000 into 12, 7,500. So total value of the plot will be 75 lakh. Now, out of this, he will have to pay rent of 20,000 per month. So annual rent will be 20,000 into 12, 2,40,000. So let us suppose 8% is capitalization rate. The value of this passage will be 30 lakh. So net value of the land over present value of the lease. So 75 lakh minus 30 lakh, 45 lakh. So 45 lakh, 1,000 square feet is a square meter is the area. So rate is 4,500 per square meter. So land rate is 10,000 in the market. He will be getting 4,000 per square meter as per our calculation. So here it discount is 55% instead of 75%. So now if we take this example, the third scenario, that A will have to pass through B, C, and D. He have to deal with a number of persons A, B, and B, C, and D. So here we are left with no other option. We have to apply, since there is no possibility of right of way for this landlocked land, we will be applying 75% discount rate, which is appropriate in our case. And if you apply 25%, 1,000 square meter into 0.25, 10,000 per square meter is the rate. So value is 25 lakh. Per square meter rate 25 lakh divided by 1,000 square meter area, 2,500 per square meter. And discount is 75%. So in this case, we are left with no other option. We have to apply a discount rate of 75%. But in the second scenario, we are applying 55% discount instead of 75%. And in the first scenario, we are applying a discount of 25%, 20% only instead of 75%. So we have taken certain examples. So instead of applying 75% discount rate in every situation, it will depend upon case to case. So you may apply different scenario. So thoroughly research each and every case and legal precedents. Engage with the neighboring owners for easement agreements if it is possible, and pursue easements by necessity if justified. So there cannot be a universal or generalized method to determine the percentage of discount in every situation, because it may vary based on other qualities and depending upon each scenario. So thank you very much. This is Thank you too, sir. all about. So we may discuss whatever the things you want to discuss, whatever we have studied. Sir, this landlocked land is it applicable for agricultural lands? Sorry? Agricultural land. This rule can it be applied for agricultural land also? Yes, you can apply that also. Agricultural Any land judgment, any case studies are like that? So I will send you in the group. Okay. Case laws on that. Or we can take some case study in the next class also.
We will take some case studies in the next class also for agriculture purposes. Any other doubt or question related to both the topics? सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ऐसा पढ़ने में आया है कि लैंडलॉक प्रॉपर्टीज आर वैल्यूड एट सर्कल रेट, और तो वो यानी कि कैसा, वो तो वो थोड़ा बताइए। और दूसरा कि ये जो कोर्ट जजमेंट है तो उसके हिसाब से शायद 3/4 वैल्यू लेना है, यानी कि 75% उसका वैल्यू निकालना है प्लॉट का, या 25% निकालना है। सर तो ऐसा नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है कि जो जिस केस में हुआ था उस केस में पर्टिकुलरली लिखा है कि आप 75% ले सकते हो, लेकिन हर जगह पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। आपको हर एक सिनेरियो को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना है कि सिचुएशन क्या है, वहां पे क्या हो सकता है। हर एक जगह पे वो अप्लाई नहीं कर सकता। एक एक केस में आपने देखा होगा कि 3/5 लिया है, तो कोर्ट ने ये कहा है कि आप इस केस में, पर्टिकुलर केस में आप 3/4 ले सकते हो, लेकिन हर एक जगह पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो दूसरा बाकी सर्कल रेट सर्कल पर्पस रेट के लेना है तो उसके लिए कोई भी केस लॉज नहीं है एज ऑफ नाउ। सर्कल रेट पर्पस के लिए तो सर जो उस एरिया का सर्कल रेट होगा आप वो ही लेंगे, उससे कम वो रजिस्ट्री नहीं करेगा। दैट इज फॉर द रिवेन्यू पर्पस ओनली। लेकिन एक्चुअल उसकी वैल्यू क्या होगी वो तो आपको ही एज अ वैल्यू और असेस करके देनी है। फॉर सर्कल रेट इज ओनली फॉर रिवेन्यू पर्पसेस। उसके अलावा उसका अभी तक तो कोई देखने में नहीं आया है कोई और पर्पस। लेकिन अगर आप बैंकिंग के लिए कर रहे हैं और सर्कल रेट पर कर देते हैं दैट यू कैन बी इन ट्रबल। क्योंकि जैसा आपने देखा, अगर ये थर्ड सिचुएशन है और आप उसको सर्कल रेट पर कर देते हैं, सर्कल रेट तो जो फ्रंट पे प्रॉपर्टी है उसका भी उतना ही होगा, और जो थर्ड स्टेज में जाके, फोर्थ स्टेज में जाके चार प्रॉपर्टी पीछे प्रॉपर्टी है उसका भी आप सर्कल रेट लगा रहे हैं। तो अगर इन केस ऑफ एनपीए हो गया तो आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर बैंकिंग पर्पज और फाइनेंशियल पर्पज और एनी अदर पर्पज तो आपको सर्कल रेट से लेना तो बहुत रिस्की हो सकता है, इट इज नॉट एडवाइजेबल। लेकिन रेवेन्यू पर्पज के लिए रजिस्ट्री सरकार उससे कम करके नहीं देगी, उनको नहीं लेना देना कि आपका वो लैंडलॉक्ड है या नहीं है। हाँ, अगर आप कोर्ट का डिसीजन दिखाते हैं तो इन कुछ केसेस में सब रजिस्ट्रार हो सकता है सेटिस्फाई हो जाए, उसको 75% पे या 80% पे या कुछ कंसेशन करके या डिस्काउंट करके वो वैलिड मान ले या 25% कर दे। लेकिन एज अ वैल्यू, और अगर आप सिर्फ सर्कल रेट पर ही वैल्यू कर रहे हैं देन यू कैन बी इन ट्रबल। मेरा अपना ऐसा मानना है। बाकी डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको इसके, इफ एनीवन इज हैविंग एनी अदर इनपुट related to this you want to share, he can unmute and discuss about that. सर और एक क्वेश्चन है कि ये जो इफेक्टिव एज और एज, इसका जो लेना है, तो अगर समझो अपन ने इफेक्टिव एज वेरी कर दिया, कम ज्यादा कर दिया, तो वो पीयर रिव्यू में आ जाएगा, और उसका एक्सप्लेनेशन कैसा दे कि भाई वो अच्छा पेंटिंग है, वेल मेंटेन है, नॉट मेंटेन है। लेकिन जब अपन प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करेंगे और जब वो रिव्यू में या इंस्पेक्शन में या डाउट में जाएगा, तब तो वो डिटोरेट हुआ होगा या और अच्छा बना होगा अगर पेंटिंग किया है। तो ये डेविएट करने में थोड़ा रिस्क लगता है सर। तो आप जो वैल्यूएशन कर रहे हो वो करंट डेट पे कर रहे हो। जो आप फोटोग्राफ्स अटैच करोगे, जो आप अदर डिटेल्स अटैच करोगे, वो सारी उस करंट डेट की हो। ठीक है, अगर कहीं फिर भी आपको लगता है देन गो फर्दर विद द chronological एज। डिपेंड अपॉन, कोई उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। फर्स्ट थिंग इज टू कि यू सेव योर सेल्फ। देखिए हाँ, अगर कोई आप, बिल्डिंग, यस यस सर, यस सर। बिल्डिंग बहुत अच्छी, बहुत मेंटेन्ड है, जिसने आज भी मेंटेन की है, हो सकता है कि जब एनपीए होगा तो वो मेंटेन करता है या नहीं करता है, उसके लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आज की डेट में क्या कंडीशन थी, आपने वैल्यूएशन उसी हिसाब से की है। बट फिर भी अगर आप डाउटफुल लगते हो तो फिर देन गो विद द chronological एज।
उसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। देखिए, अगर 50 साल पुरानी बिल्डिंग है तो उसमें उसका उस वक्त का कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा जो 50 इयर्स पहले होता था। और एज ऑन डेट काफी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो देखने में आया कि उनके पेरेंट्स की थी और उन्होंने उसको मॉडिफाई करके कुछ आरसीसी में कन्वर्ट कर लिया है, या फिर कुछ स्ट्रक्चर बदल लिया है, उनके बैटन्स वगैरह बदल लिए हैं, या उनकी ट्रसेस या कुछ और टी आयरन वगैरह था वो बदल के उनको आरसीसी में कर लिया और उसका इंटीरियर वर्क सारा बदल लिया है। कुछ वॉल्स वगैरह तोड़ के उसकी जो फंक्शनल ऑब्सोलेसेंस थी वो दूर कर दी है, टॉयलेट्स वगैरह जो बाहर होते थे उनको उन्होंने प्रॉपर कर लिया है। अगर आपको ऐसा सिचुएशन लगता है मौके पर जाकर के ये 50 साल पुरानी बिल्डिंग है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 50 साल पहले पेपर्स में है, और एज ऑन डेट ऐसा नहीं लगता कि बिल्डिंग 50 साल पुरानी है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। जैसा मैं एक आउट ऑफ वैल्यूएशन के आपको एग्जांपल दूंगा, मिस्टर अमिताभ बच्चन, अगर आप देखेंगे कि आप उनका एज लेट इट बी 80 इयर्स के आसपास है, लेकिन उन्होंने उनका मेंटेनेंस और इतना ज्यादा अच्छा है उनका सारा कुछ कि आप उसको 80 इयर्स का कंसीडर नहीं करेंगे, 70 या 60 के आसपास कंसीडर करेंगे। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, मैं अभी ज्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उसको रियल लाइफ अगर आप सिनेरियो देखें, या फिर कुछ आप अगर मोटरसाइकिल देखें, जो विंटेज कार्स हैं, जो कार्स हैं, तो कार देखिए वो अब ऑब्सोलेट हो चुकी है, लेकिन अगर विंटेज कार है उसकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी है तो वो उससे 3 गुना कॉस्ट में भी सेल हो सकती है, अगर एज ऑन डेट अगर आप देखें तो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द इफेक्टिव एज। ये आप फर्क देख सकते हैं। छोटा सा मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की आपको रियल लाइफ में समझाने की, लेकिन ये वैल्यूएशन से हटके है। यस सर, मिस्टर उत्तम राव सर। सर दूसरा यस ये सर, भी है यस ना, सर, अगर अंडरस्टूड। कोई बिल्डिंग बेसिकली क्या है कि डेप्रिसिएशन का बेसिक जो है वो है कि आपने फाउंडेशन किस ईयर में बनी है, तो उस पे डिपेंड करता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार किसी आदमी ने कोई बहुत अच्छी रेनोवेशन कर दी, बिल्डिंग 25 साल पुरानी थी लेकिन उसने बहुत अच्छी रेनोवेशन कर दी। अब अगर आप 25 साल वाली डेप्रिसिएशन वहां पे लगाओगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप उसको ये भी देखना पड़ेगा कि रेनोवेशन तो कर दी है, तो लेकिन उसमें उस बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल कैपेसिटी भी है कि अगर बिल्डिंग 50 साल की, मान लो 50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, उसने रेनोवेशन कर दी, वो बिल्डिंग हमारी जो है वो 25-30 साल पुरानी लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैसी कोई ऊपर से ही सुर्खी बिंदी लगा दी है, कि यस सर। प्रैक्टिकली ये आपको भी देखना पड़ेगा कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो कितनी देर तक रह सकता है, जैसे आपको मैं तब आप रियल लाइफ इफेक्टिव एज कम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी इफेक्टिव एज उसकी बहुत अच्छी कंडीशन बाहर से देखा बहुत अच्छा लग रहा है तो आप उसको इफेक्टिव एज को कम कर। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। एक अभी मैं वैल्यूएशन करने के लिए गया था एक फ्लैट की। फ्लैट को जब विजिट किया, लिफ्ट के साथ ऊपर गए तो फ्लैट बहुत अच्छा मेंटेन था, सब कुछ उन्होंने प्लस्तर वगैरह हटा के बहुत बढ़िया प्लस्तर वगैरह या इंटीरियर वर्क कर दिया था, और उसमें सारा एचपीएल शीट्स वगैरह लगाकर, इवन वुड वर्क बहुत बढ़िया किया हुआ था, किचन सारा रेनोवेट कर लिया था, सारा कुछ बेडरूम में सीलिंग वगैरह किया था, बहुत बढ़िया इंटीरियर लाइट्स वगैरह, बहुत बहुत काफी पैसा उन्होंने खर्चा था। लेकिन जो जिस बिल्डिंग में फ्लैट था, अगर जब मैंने उसको चारों तरफ जाके सर्वे किया, थोड़ा दूर से देखा, तो उसमें ऐसा लगा कि बिल्डिंग 20 इयर्स पुराना है। और अल्टीमेटली अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन को कुछ हो गया तो फ्लैट का क्या करेंगे? तो क्या उस केस में जो उत्तम राव सर हैं, ही मे बी राइट, कि उसमें हम सिर्फ उसकी क्रोनोलॉजिकल एज ही लेंगे, इफेक्टिव एज उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग जिसके ऊपर फाउंडेशन है और जो बिल्डिंग का पार्ट है, उसमें देखा कि कुछ फ्लैट्स में तो इतना ज्यादा डैम्पनेस था उनके टॉयलेट के बाहर की तरफ से, तो बहुत बुरा हाल था। हालांकि ये पर्टिकुलर फ्लैट, लेट इट बी, इट कैन बी ऑन 7th फ्लोर, तो 7th फ्लोर का वो पर्टिकुलर फ्लैट अंदर से बहुत बढ़िया है, लेकिन बाहर से बिल्डिंग तो वो एग्जिस्ट तो उसी बिल्डिंग के अंदर कर रहा है ना। इनकेस बिल्डिंग की लाइफ एक टाइम के बाद खत्म हो गई, 25 ईयर्स है तो 25 ईयर्स ही रहने वाली है, हो सकता है उससे भी ज्यादा
नेगेटिव में जाए, तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि उसने सब कुछ रेनोवेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया तो हम उसकी इफेक्टिव एज कम कर दें। ऐसा भी पॉसिबल हर केस में नहीं है। इट डिपेंड्स केस टू केस। यस सर, ओवर टू यू। ठीक है संदीप जी, किसी को कोई और डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। एनी अदर डाउट? सर मैं आपको फोन कर रहा हूं, आपका फोन शायद इधर उधर है, आप एक बार उसको पिकअप कर लीजिए राजविंदर सर। यस सर, एनी अदर डाउट और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? पहले जो टॉपिक लिया था उसके बारे में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट, या इसके बारे में अभी जो टॉपिक लिया है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इनकेस अगर पिछले 2 सेशन के बारे में भी कोई आपके पास क्वेश्चन अगर आपने अटेंड किया है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, या कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस वो भी कर सकते हैं। एक कोई इसमें doubt तो वैल्यू clear नहीं कर एडिशन रहे? एक यस। इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहूँगा सर मैं। जो हाँ डिटेल कॉस्ट एस्टिमेट जैसे आरसीसी का किया, उसमें फॉर्म वर्क, शटरिंग और रीइंफोर्समेंट सब एक साथ कर दिया। तो उसमें सेंसिटिविटी एक तरह से लूज कर देते हैं हम लोग बिल्डिंग के काम के लिए। नॉर्मली सीपीडब्ल्यूडी क्या करता है कि कंक्रीट है तो कंक्रीट के एलिमेंट लेता है, सैंड, एग्रीगेट, लेबर, वाटर, ये कंपोनेंट लेकर के ओवरहेड्स, सीपी एक्सेट्रा लेकर के कर देता है। रीइंफोर्समेंट को सेपरेट रखता है क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। तो वो सीपीडब्ल्यूडी का एनालिसिस ऑफ रेट्स रेडीली अवेलेबल है मार्केट में, तो वो हम लोग यूज़ कर लेंगे तो बहुत हैंडी है और वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। उसमें सेंसिटिविटी इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि एक का इफेक्ट दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, तो आई थॉट टू शेयर विद द पीपल। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल परफेक्टली आपने एक्सप्लेन किया है। और इवन अगर आप डीएसआर देखें, डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स, तो जी उसमें भी सेंसिटिविटी एनालिसिस उन्होंने कुछ पार्ट्स का करने की कोशिश की है, उसका भी हम बेनिफिट ले सकते हैं सीपीडब्ल्यूडी से। नो डाउट अगर आपके स्टेट में उन्होंने दिया है तो ये आप उसको इस्तेमाल कर ही सकते हैं। अदरवाइज सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में क्लास कोशिश करेंगे, अगर टाइम हमें परमिट करता है तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले तक हम सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड का वैल्यू निकाला, बिल्डिंग का वैल्यू निकाला, उसमें डेप्रिसिएशन लगाया नहीं लगाया कोई नहीं देखता था, अभी मुश्किल। लेकिन अभी बैंक्स की तरफ से भी ये इंक्वायरी आ रही है, और आईबीसी के अंदर तो ये आपसे पूछा ही जाएगा कि आपने डेप्रिसिएशन लगाया है तो कितना लगाया और क्यों लगाया है, नॉट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग बट प्लांट एंड मशीनरी आल्सो। आप देखें तो ये चीजें काफी जरूरी हो गई। राकेश सर के जो बताया उन्होंने, राकेश सर ने, तो उसमें उनके कंटिन्यूएशन में बताना चाहता हूँ ठीक है। कि अपन जो डिटेल एस्टिमेट करते हैं तो वो डीएसआर का जो शेड्यूल ऑफ रेट्स रहते हैं उसका आइटम देख के ही अपन करते हैं कि भाई ये आइटम में क्या क्या कवर है, तो वो हिसाब से अपन करते हैं। और जो आइटम कवर्ड नहीं है इसमें शेड्यूल ऑफ रेट में, उसका रेट एनालिसिस करते हैं। थैंक यू। उसको ड्राइव ड्राइव करना पड़ेगा सर। इनकेस अगर वहां पर वो पर्टिकुलर आइटम कवर नहीं है तो हमें उसको एनालिसिस को डिराइव करना पड़ेगा, उसका रेट ड्राइव करके हम उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पहुंच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। काफी वैल्यूअर्स हैं जो काम तो शुरू, उन्होंने वैल्यूएशन का प्रोफेशन तो शुरू कर दिया, लेकिन काफी उसमें आपको कंफ्यूजन है कि किस तरह की रिपोर्ट है, किस तरह देनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या उसमें इनपुट होना चाहिए। अभी हमारे पास 30 मिनट्स का टाइम है, तो हम कोशिश करते हैं आपको कुछ और
चीजों से एक्सपोजर करने का, सो दैट यू कैन बी एबल टू स्टार्ट द वर्क इन वेल technical manner from the 1st of April. Yes. अभी हमने यह किया था कि depreciation we have done the three methods of depreciation. So which method is to be applied उत्तम राव सर, ये in a आपके particular क्वेश्चन का case? आंसर देने की कोशिश की जा रही है सर। आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट सेशन में, उसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं आपको रिप्लाई करने का। So basically, if you draw depreciation curves, in building the shape of the depreciation curve is like this. And in case of plant and equipment, the shape of the depreciation curve is like this. And if we draw some curves for a building, we are taking an example. Let us suppose we are having a building and its cost of the building is assumed to be 1 crore and its useful life is 60 years. The value is expected to be 0 at the end of useful life of the building. We are taking just an example. This is just an example, not a particular case. This will clear your doubts which method is to be applied in which case. So depreciated values by straight line method, constant percentage method, and sinking fund method at 0, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, that we have make a table. So at the start value is 1 crore. We for in straight line methods, the depreciation for constant percentage method we take 10% per annum. This is just for an example. ग्राफ बनाने के लिए ऐसे 10% होती नहीं है बिल्डिंग के केस में, लेकिन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 10% हमने ली है वैल्यू, और सिंकिंग फंड हमने कैलकुलेट किया है 6% में। एक एग्जांपल हमने ले लिया। अब देखिए एक चीज आप इसमें देखोगे कि अगर आप कांस्टेंट, इफ यू गो फॉर द कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, वैल्यू एट द एंड कभी भी जीरो नहीं होगी कांस्टेंट परसेंटेज में। एक तो ये चीज का ख्याल रखना कि दोनों मेथड्स में ये वैल्यू देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू जीरो आ रही है, लेकिन देखिए एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम है। यस सर। सिंकिंग फंड में और स्ट्रेट लाइन मेथड में जीरो आएगी, लेकिन कांस्टेंट परसेंटेज मेथड में कभी भी जीरो नहीं आएगी। अब अगर आप कर्व ड्रा करते हैं, अगर हम कर्व ड्रा करें तीनों के लिए, एक ग्राफ ड्रा किया हमने, ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में ये डेप्रिसिएशन है। देखिए ग्राफ देखने के बाद आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि उसको स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप उसका कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा एज ए इंजीनियर, इसीलिए उसको इंजीनियर्स मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है। तो आपको अभी तक ये नहीं पता था कि इसको स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहते हैं, लेकिन जब उसकी फिगर का वैल्यू जो आएगी उसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इट विल ऑलवेज कम एज अ स्ट्रेट लाइन। यस सर, ओवर टू यू। और ये दिस इज विद कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, एंड विद सिंकिंग फंड मेथड द ग्राफ कर्व इज लाइक दिस। तो हम एक फोर्थ मेथड है दैट इज कॉल्ड एस कर्व मेथड। एस कर्व मेथड में आप देखोगे कि हमने एक कर्व जो है ये
आप आर रिक्स के गाइडेंस में दिया गया है। There is no discussion whatever regarding any curve which is concave in nature, despite the fact that part of S curve is concave. तो हमने ये assume कर लिया कि अब इन तीनों मेथड्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखेंगे कि स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन बहुत कम है इसमें, लेकिन जैसे जैसे लास्ट में जा रहे हो, पहले 1 करोड़ है, 3 लाख, 4 लाख, उसके बाद 8 लाख, फिर 15 लाख, फिर 25 लाख। अगर इसमें देखोगे तो स्टार्टिंग में देखो कांस्टेंट परसेंटेज में पहले 1 करोड़ है, तो फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में 34 लाख रह गए, उसके बाद 12 लाख रह गई, फिर 42,000 रह गई, 42 लाख रह गई, 14। सी देख, इसमें देखिए डेप्रिसिएशन कैसे जा रही है, तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा है, और इसमें स्टार्टिंग में 17 लाख, 13 लाख, और एंड में जाके ये डेप्रिसिएशन जो है, एंड में ज्यादा होनी चाहिए डेप्रिसिएशन। पहले साल में 17 लाख है, लास्ट में देखिए 40 से 50 में ये 16 लाख है। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि बेसिकली क्या होनी चाहिए कि स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन कम होनी चाहिए, जैसे जैसे हम लाइफ बढ़ती जा रही है डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ना चाहिए। बेसिक क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि इन द इनिशियल ईयर 0 to 20 रैपिड डेप्रिसिएशन, इन द मिड लाइफ एसेट 20 to 40 years again slow depreciation towards the end asset life, फिर डेप्रिसिएशन मिडल वाली एज में डेप्रिसिएशन हमने मैक्सिमम रहे। तो अगर हम एस कर्व ड्रा करेंगे तो ये जो एस कर्व है ये वाली बेसिकली जो होना चाहिए। अब अगर हम देखेंगे कि स्टार्टिंग के ईयर्स में ये एस कर्व जो कर्व है, एस कर्व अगर आप देखिए एस कर्व और सिंकिंग फंड में देखिए, स्टार्टिंग में दोनों एक दूसरे के नजदीक है। अगर आप 0 से लेके 20 साल तक देखिए, ये जो एस कर्व है और जो आपका कांस्टेंट, सॉरी सिंकिंग फंड मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड और एस कर्व वाले ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू दे रहे हैं स्टार्टिंग में। तो 0 से लेके 20 साल तक आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड ले सकते हैं। अगर आप 20 से 40 तक देखोगे, 20 से 40 साल तक, तो स्ट्रेट लाइन मेथड वाली जो वैल्यूज है देखिए, स्ट्रेट लाइन वाली वैल्यूज ये दोनों अप्रोक्सीमेटली नियरर है। कांस्टेंट परसेंटेज वाले भी दूर चले गए और सिंकिंग फंड वाले भी दूर चले गए। तो सर 20 आई से थिंक 40 साल तक की एज के सिंकिंग लिए आप फंड क्या कर सिंकिंग सकते फंड हैं, ऊपर वाला है सर, आई थिंक सिंकिंग फंड ऊपर वाला है। ये सिंकिंग वही कह रहा हूँ कि सिंकिंग फंड वाला ऊपर चला गया। स्ट्रेट लाइन मेथड और एस कर्व वाले जो है, ये स्ट्रेट 20 से 40 तक आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर सकते हो। पहले साल में आप सिंकिंग फंड यूज कर सकते हो 0 से 20, 20 से 40 आप स्ट्रेट लाइन मेथड कर सकते हो। अगर देखिए 40 to 60, तो ये जो कांस्टेंट परसेंटेज है और सिंकिंग, ये जो स्ट्रेट आपकी एस कर्व है, ये इनकी दोनों की वैल्यू नियरर है। तो आप लास्ट में जो 40 to 60 ईयर्स वाली लाइफ है, इसमें आप कांस्टेंट परसेंटेज मेथड यूज कर सकते सर कांस्टेंट परसेंटेज को ही डब्ल्यूडीवी मेथड कहते हैं सर। हैं। आना बंदा 5 मिनट। यस हाँ जी, सर, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, सीएज मेथड, ये सभी एक ही चीज है।
उधर बिठाओ ऑफिस। ठीक है। यस सर। पानी नहीं सुन। कोई डाउट है तो तो पूछिए, एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? दिस इज हाउ यू कैन डू डेप्रिसिएशन पार्ट। देखिए, ये एक तरीका है, टाइप ऑफ किस तरह से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, आप पर्पस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उनमें से कौन सी वैल्यू फाइनल करते हैं। बैंकिंग पर्पस के लिए कुछ अलग होगा, कैपिटल गेन पर्पस के लिए अलग होगा, डिपार्टमेंटल टैक्सेशन के लिए अलग होगा, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए अलग होगा, और थ्रो अवे सेल के लिए या फोर्स सेल के लिए अलग हो सकता है। तो इन सब के लिए आपको पूरा का पूरा एक एनालिसिस चार्ट बनाकर रखना चाहिए अपने लैपटॉप के अंदर या एक्सेल में, कि पर्पस टू पर्पस आपको वैल्यू डिफर करेगी, तो कौन सा मेथड आप कब इस्तेमाल करेंगे और किस वक्त आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है, ये चीजें आपके पास इन ग्राफिकल फॉर्म में होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे आगे नेक्स्ट सेशन में आपको इससे रिलेटेड, क्योंकि अभी टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके रिलेटेड कुछ करेंगे। लेकिन अभी तक जो बताया गया है, उत्तम राव सर, कुछ क्लियर हुआ आपका डाउट जो आपने क्वेश्चन पूछा था? हाँ, यस सर, यस। जी। एनी अदर रिलेटेड टॉपिक या क्वेश्चन आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कुछ रिवेन्यू टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करने का, और कुछ और टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आपको दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कशन। अभी इस टॉपिक के ऊपर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, या प्रीवियसली जो पिछले 2 दिनों में किया गया उनसे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। सर बैंकिंग वैल्यूएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करेंगे ना? मैडम आप स्ट्रेट आप चेक कर सकते हो कि क्या कंडीशंस है, कैसी है, तो वो डिपेंड करे। जनरली हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप सालवेज वैल्यू लेके कैलकुलेट करते हो, फार्मूला कांस्टेंट परसेंटेज का लगाते हो, तो उससे वैल्यू कम आती है डेप्रिशिएटेड की। तो अगर आप कंजर्वेटिव वैल्यूएशन देना चाहते हो तो आप कांस्टेंट परसेंटेज मेथड विद सालवेज भी यूज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स। नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप फ्रेश लोन के लिए कर रहे हैं, या फिर एनपीए पर्पस के लिए कर रहे हैं, या फिर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की दोबारा वैल्यू कर रहे हैं। उन केसेस में आपको अगर दूसरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रॉपर्टी में कितनी सेफ्टी आप रखना चाहते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव करना चाहते हैं तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से आप उसको दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी में कोई नेगेटिव फैक्टर्स कम है और बिल्डिंग सेफ है और लोकेशन भी सब कुछ सही है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक टैक्सेशन। है संदीप जी, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। या, thank you very much, sir. So friends, Okay. if you are not having any question or doubt, we are compiling the this technical session. Yes, Baman Dev sir, कुछ BD sir कुछ है? हम बोल रहे थे कि हम लोगों जो अभी डेप्रिसिएशन का मेथड का लेके डिस्कशन किए हैं, उन्होंने पूछा कि बैंक वैल्यूएशन में मैं क्या करूं। अब बैंक वैल्यूएशन में सबसे बड़ा मुश्किल क्या है, आप तो जानते हैं सब, क्योंकि आप तो ज्ञानी हैं, लेकिन बैंक का आदमी जो उधर में बैठा हुआ है वो तो आपसे भी ज्ञानी है। वो बिल्कुल बोलेगा सर। तुम कहां से सब लिख के लाया, ये क्या लिखा है? हाँ, दूसरा वाला वैल्यूअर इतना किया, तुम इतना कर दिया, जाओ लेके जाओ वापस। तो दिस इज प्रैक्टिकल। हम लोगों ने प्रैक्टिकल में ये बात जरूर बोलेंगे कि भाई तुम्हारा अगर होगा तो अगर आप संभाल के नहीं चलोगे तो तुमको ही निकाल देगा, बोले जाओ, जरूरत नहीं है भाई, तुमको जरूरत नहीं है, दूसरा कोई आएगा।
क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन आता ना, एक तो आप जो वैल्यूएशन कर रहे हैं वो आपका ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इट इज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जैसा है वैसा ही बाकी आदमी जो देख रहे हैं उसका नजरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और 90% आदमी का नजरिया में वो आप जितना भी बोलिए, हमने एक बार मैरिज वैल्यू के ऊपर एक तो वैल्यूएशन करके लेके गए थे तो हमको हंसता है, बोला आपने नया नया थ्योरी निकाल रहा है क्या गुप्ता जी, आपका भी मैरिज करने का उम्र आ गया क्या? हम बोला सर हमने पढ़ा है, सोचा इसको यूज करके देखते हैं कैसा क्या होता है। बोला आपने क्या किया इसमें हमको समझने का नहीं है, हमको तो भैया जितना लोन है उसका अगल बगल में आप लोगों को दोनों का हो जाएगा तो हम पास हो जाएंगे। हमको तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन में ही जानो पे है, SOP और कुछ नहीं जानते हैं। वो बोला भैया हमको जो लोन है ना ये 30 लाख का है या 10 लाख का है, तो ये आप लोगों दोनों में कितना किया, आपने 8 लाख कर दिया उसने 6 लाख कर दिया, अभी तो हम फंस गया, या तो ऐसा करो या तो वैसा करो। उतना डिफिकल्टीज हमको नहीं देखने का है क्योंकि हमको सिखाया नहीं है। अब हम बोलेंगे सर इतना पढ़ाई वढ़ाई किया है बेकार का, इतना क्वालिफिकेशन लेके क्या फायदा हुआ? बोले वो फायदा आपका डिग्री है ना वो देख के हमको खुशी होता है, बस यही फायदा है, बाकी आपका पास रखिए। वैसा ही हाल आई मीन जस्ट डिस्कस नथिंग, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीबॉडी। वैसा ही हाल हमारा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी में है, क्योंकि 90% ने वो जो क्लास 8 का जो विद्या है, क्लास जो 8 का मतलब वो जो जिस टाइम पे पढ़ा था उस टाइम का जो विद्या है उसी को पकड़ के बैठा हुआ, नोबडी इज अपडेटिंग इट। हमने बहुत एक इंटरेस्टिंग केस बताएंगे। हमने एक इसमें हमारा एक क्या बोलते हैं उसको कस्टम्स के एक इंटरव्यू था, मतलब एक एग्जाम था। बोला अरे बाप रे इस टाइम में भी एग्जाम देने होगा क्या, तो उधर में दिया हुआ है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलो, फास्ट लॉ बोलो। अब हमको तो बहुत सोच समझ करके हम कुछ भी लिख दिया। उसके बाद इंटरव्यू हमको बोला एक तो ऐसा ही क्वेश्चन किया जो बहुत मतलब बेसिक थ्योरी है। हम बोला सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन मुश्किल क्या है हमारा जो स्टूडेंट है वो भी इतना नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने भी कब ग्रेजुएट हो गया उसको पता नहीं है, और एक ग्रेजुएट का फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। बोला हाँ, हम बोला सर ठीक बात बोलिए, आप जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसका बेस कहाँ पे मिला आपको? बोला हमने जब BSc पढ़ रहा था वो एग्जाम देने का पहले, कस्टम्स में एग्जाम देने का पहले हमने BSc पढ़ा, तो उस टाइम पे हमको एक थ्योरी पढ़ा था फिजिक्स में। हम बोला सर वो अभी वो आप पूछेंगे अभी तो हम कैसा बताएंगे बोलिए। तो अब हमारा इतना तो पावरफुल ये मेमोरी नहीं है कि 40 साल पहले हमने जो पढ़ा था उसको याद करके हम बोलेंगे। दो एक तो लाइन हम बोल सकते हैं लेकिन पूरा नहीं बोल। तो हम लोगों को एक चीज समझने में गलती हो रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग टू मी, यू और बंसल जी और कोई, आई मीन कोई भी, nobody, and even if IBBI officials, that those who are dealing with you are not that much of understanding this subject. You are reading IBBI का जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो क्वेश्चन सब इन द ग्रेड ऑफ थ्योरी मतलब थ्योरी में कहाँ पे डॉक्टरेट का थ्योरी में जाता है। अब आपको बोलेंगे रिस्क मैपिंग करिए, तो दैट इज नॉट इन दिस थ्योरीज, और आपको क्वालिफिकेशन मतलब क्वेश्चन में भी कहीं नहीं मिलेगा। बट दैट मैन नोज बिकॉज ही हैज डन इन हिज रिसर्च पेपर दैट थिंग। तो ये चीज को कोई बोलने वाला भी नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है, इसलिए कोई दुख नहीं है, हम खाली बता रहे हैं आप लोग। ठीक है सर? सही है सर, तो बिल्कुल सही, आपकी प्रैक्टिकली आपकी बात बिल्कुल ठीक। नहीं हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं सर। आई एम सीइंग द हालत ऑफ एवरीबॉडी, बिल्कुल आई एम नॉट सीइंग माई सेल्फ। हमको सबसे खराब लगता है जब IBBI पास लड़का लोगों जब लाइसेंस जमा दे देता है। क्यों? बिकॉज ही नोज कि कल अगर हम फंस गया, और वो भी सभी पोस्टमार्टम, अरे पहले कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब बोलेगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पोस्टमार्टम में तुमको ले जाके फांसी में झुला देगा, और बीच में कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 2000 रुपया फाइन होगा भाई देखिए, आपको सीधा ले जाके जेल में डाल देगा, क्योंकि उनको तो नाम चाहिए ना भाई, बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर माई नेम। माई नेम क्या है? अरे हमने तो 500 वैल्यूअर को अंदर डाल दिया।
चाहिए बैंकिंग हमको। सेक्टर में यही है कि सर रेस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टिंग हो जाती है काफी केसेस में। अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर गलत वैल्यूएशन हो गई या फ्रॉड केस में बात इन्वॉल्वमेंट हो गया, पहली बात सोचिए, आप कोई पुलिस के पास जाएंगे ना, हमारा पास एक केस, आई एम जस्ट टेलिंग यू प्रैक्टिकली सर, आई एम नॉट थिंकिंग। हमको बोल रहा है कि 10 साल पहले आपने ये जो केस किया था, इसमें आदमी बोल रहा है कि सर हम नहीं था। हम बोले सर माफ करिए, आज से हम, पहला तो हमारा आज से 10 साल का पहले का याद नहीं है, और दूसरी बात है ये आदमी अगर नहीं बोला तो फोटो क्यों उतारा था सर? आप खाली यही चीज समझा। आप अगर उसमें हमको वैल्यू, मतलब आप हमको अगर वैल्यूएशन नहीं देने मांगते हैं, या आप अगर हमको लोन नहीं देने मांगते हैं, तो आपने फोटो क्यों उतारा हमारा पास? हमने तो आपका फोटो लिया ना, ऐसा नहीं है कि हम फोटो में छोड़ दिया। तो आपने फोटो दिया और आज बोल रहे हम तो देने वाला, हमारा नाम नहीं है, दूसरा नाम है, ये आपका फोटो है क्या? नहीं बोला हाँ उसका फोटो है। हम बोला तब हम क्या करेंगे, बोलिए सर। तो यही है मुश्किल कि दूसरा आदमी आपको कैसे भी ड्रैग करने मांगता है, बिकॉज दे वांट्स नेम, दे डोंट वांट एनीथिंग। ओके सर, गुड नाइट टू यू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। तो मेरी रीटा मैडम के लिए सजेशन यही है कि बहुत बहुत केयरफुली आप करिए, और जैसा राजविंदर सर ने अगर आपको तीनों चारों तरीके से जो एस्कर बनाना सिखाया है, अगर आप वो एनालिसिस साथ में दे देते हैं, वैल्यू आप जो मर्जी दीजिए, इट डजेंट मैटर। आप पॉजिटिव लीजिए, आप स्ट्रेट लाइन से दीजिए, जो आपको पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ में जो वैल्यू नजर आ रही है वो दे सकते हैं। इट मे बी लोअर और हायर, ऐसा कुछ नहीं है एस कर्व के बराबर ही वैल्यू देनी है। लेकिन अगर आप ये एनालिसिस कर देते हैं, इट मे टेक हार्डली 15 मिनट्स। अगर आपने एक्सेल शीट तैयार की हुई है तीनों चीजों की, तो 15 मिनट से ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे एक रिपोर्ट बनाने में। लेकिन उसके साथ आपकी जस्टिफिकेशन क्लियरिफाई हो जाएगी, और कल को जैसा गुप्ता सर ने बताया, कोई अनफॉर्चुनेट इस तरह की सिचुएशन आएगी, देन यू मे बी एबल टू डिफेंड योरसेल्फ कि आपने ज्यादा दिया है कम कम दिया, उससे कोई उनको मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है कि जस्टिफिकेशन से, और अगर आप जस्टिफाई कर पाएंगे, इट विल बी ऑलवेज बेटर। एसओपी जैसा सर ने बताया, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अगर हम फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा। बाकी देखिए, बैंकिंग सेक्टर में तो उनको वैल्यू जब फाइनेंस करना है तो अपने मतलब की चाहिए, जब एनपीए होता है तो कुछ और वैल्यू चाहिए। तो इस हम लोग इस डिस्कशन में अगर पढ़ेंगे, देयर विल बी टू लार्ज सेशन। तो इसमें हम लोग ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। अभी धीरे धीरे सिचुएशन बदल रही है, पहले सिचुएशन कुछ और हो सकती थी, धीरे धीरे काफी कुछ बदल रहा है, काफी नॉर्म्स आ रहे हैं, काफी रेगुलेशंस आ रही हैं, काफी रेगुलेटरी बॉडीज अपने रेगुलेशंस के बारे में जागरूक हो गई हैं। आगे आने वाले टाइम में 6 महीने में आप देखेंगे पूरा का पूरा सिचुएशन बदल जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 6 महीने के अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है। यस सर। एनीथिंग एल्स? कुछ आप और ऐड करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सजेशन है तो आप दे सकते हैं, जैसा गुप्ता सर ने अभी बताया। एनीवन एल्स? 3 मिनट है हमारे पास। आईटी एक्ट में सर यस। जो एग्जाम का जिक्र किया है, उसके बारे में कुछ आइडिया बना कि किस तरह का एग्जाम है, या आईबीबीआई को ही एक्सेप्ट करेंगे? हाँ देखिए सर, अभी तक मैं ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे उसको डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। अभी 5 मिनट आप अगर वेट करेंगे तो मैं, अभी ये हम सेशन खत्म कर लेते हैं, 8:30 बजे तक का टाइम है। इसके बाद हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज आईटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस रेगुलेटरी बॉडी। तो उसके बारे में हम अभी तक तो नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। अभी 2 मिनट है हमारे पास, अगर 2 मिनट में कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू कंपाइल टुडे सेशन। टेक्निकल सेशन डिस्कशन चलता रहेगा, टेक्निकल सेशन हम यहाँ पर बंद करना चाहते हैं। अगर कोई और आपके पास कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट? ओके, सो we are shifting towards the general discussion.